नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। माई सेल्फ जेवियन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, प्रोग्राम BA B.Ed 6M and others. Course paper name Pedagogy of Civics from Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur, Rajasthan. Students, today our session topic is Blueprint Part 2, Steps of Preparing Blueprint. We will discuss both languages, first in English, then after Hindi. Let's see in English. Steps to discuss. First step, points weighted by subject matter number, serial number. Second, subject matter. Third, points. And fourth, percentage. Serial number 1, president, 0.4, percentage 16. Serial number 2, presidential election, 0.5 and percentage 20. Serial number 3, powers of the president, 0.7 and percentage 28. Fourth serial number, president and impeachment, 0.4, percentage 16. Serial number 5, president's actual position, 0.5 and percentage 20. So total point 25 and percentage total 100. Let's see second step, point weight number by purpose. Serial number, purpose, points, percentage. First serial number, cognitive, 0.10, percentage 40. Second serial number, objective, 0.8, percentage 32. Serial number third, enlightenment, 5 point, percentage 20. Serial number 4, skillful, 0.2 and percentage 8. So total point is 25 and percentage total is 100. We discuss one points related to this. First point is to provide weightage to the units to be tested. At this stage, the teachers distribute the whole numbers prescribed for the test based on the importance of the subject matter in the selected units, subunits at their description. Second is assigning weightage to objective. At the second level, for the purpose of the test, allocate the number of integers and determine its percentage. The progress of allocation, points and percentage according to the purpose is called assigning weightage for the purpose. Third, assigning weightage based on questions or test posts. Based on the types of questions at this level, the posts have to be selected which are examiner term marks, which is not between the content and objective. Fourth point is the creation of blueprint. At this stage, the weightage assigned to the type and purpose of subject matter questions is
in such a way that the sum of the above three does not exceed the marks allotted to them. The blue letter format is also called a three direction indicator picture because the objective content and questions are displayed in their directions. Thus, the sum of the above three is down separately and the same as the allotment marks weight. Let the integer be the same from both sides and the percentage also be equal in number from both sides. Second step, on the basis of questions mark weight number serial number type of question, number of question, points, percentage. Serial number 1 type of question easy questions, number of questions 1, points 4, percentage 16. And serial number second short question, number of questions 4, points 8, percentage 32. 3 serial number very short question, number of questions 4, points 4 and percentage 16. Serial number 4 objective questions 9, number of questions 9, points 9 and percentage 16. Point total 25 and percentage 100. Okay, this session prepared by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University Jaipur Rajasthan. Let's see in हिंदी. स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है वो हमारा ब्लू प्रिंट पार्ट सेकंड है, नील पत्र निर्माण के चरण. ठीक है, पिछली बार हमने ब्लू प्रिंट पार्ट फर्स्ट की बात की थी, क्या होता है, किसे कहते हैं, क्या क्या उसमें आता है, हमने उसकी बात की थी. अब इनके स्टेप की बात कर रहे हैं, चरण की बात कर रहे हैं. देखिए, सबसे पहला जो चरण है, प्रथम चरण, विषय वस्तु के आधार पर अंक भार क्रम संख्या. एक टेबल के माध्यम से हम इनको समझेंगे. और फिर है विषय वस्तु, फिर है अंक और फिर प्रतिशत. क्रम संख्या जो पहली है उसमें विषय वस्तु राष्ट्रपति, अंक 4, प्रतिशत 16. फिर दूसरा क्रम संख्या राष्ट्रपति चुनाव, अंक 5 और प्रतिशत 20. क्रमांक संख्या थर्ड, जिसमें राष्ट्रपति की शक्तियाँ विषय वस्तु और अंक 7 और प्रतिशत 28. उसके बाद क्रम संख्या 4 राष्ट्रपति और महाभियोग विषय वस्तु में, अंक 4 और प्रतिशत 16. इसके बाद क्रम संख्या 5 विषय वस्तु राष्ट्र की वास्तविक स्थिति, राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति, अंक 5, प्रतिशत 20%. तो टोटल अंकों का अगर अपन देखें तो 25 है और प्रतिशत 100 है. ठीक है, अब दूसरे चरण की बात करते हैं, सेकंड स्टेप की. इसमें पहले देखेंगे उद्देश्यों के आधार पर अंक भार क्रमांक. ठीक है, फिर है इसमें ये भी टेबल ही है और इसमें उद्देश्य, अंक और प्रतिशत. तो उद्देश्यों के आधार पर क्रम भार क्रमांक पहला जो है उसमें उद्देश्य में ज्ञानात्मक, अंक में 10 और प्रतिशत में 10% है. दूसरा भार क्रमांक जिसमें उद्देश्य अवबोधात्मक और अंक 8 और प्रतिशत 32. तीसरा भार क्रमांक जिसमें उद्देश्य ज्ञानोपयोग और अंक 5 और प्रतिशत 20. और भार क्रमांक 4 इसमें कौशलात्मक उद्देश्य हो गया और अंक 2 और प्रतिशत 8. तो टोटल इनका भी करेंगे तो 25 तो आपके अंक आएगा और इसके अलावा प्रतिशत आपके 100 हो जाएगा. तो कहीं ना कहीं इक्वल चीज़ें आ रही हैं. अब देखिए, इसमें जो चरण है उसमें कुछ पॉइंट अपन देखेंगे, जिसमें पहला है परीक्षण की जाने वाली इकाइयों या विषय वस्तु को भार प्रदत्त करना. टू प्रोवाइड वेटेज टू द यूनिट्स टू बी टेस्टेड. इस स्तर पर परीक्षण के लिए निर्धारित पूर्णांकों को विषय वस्तु की महत्ता के आधार पर शिक्षक अपने विवेक से चयनित इकाइयों उप इकाइयों में
वितरित कर देता है। उसके बाद दूसरा, उद्देश्यों को अंक भार प्रदत्त करना या प्रदान करना। द्वितीय स्तर पर परीक्षण के लिए निर्धारित उद्देश्यों में पूर्णांक के अंकों को आवंटित करके उसका प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। अंकों और प्रतिशत को उद्देश्य अनुसार अंक भार आवंटित करने की प्रक्रिया ही उद्देश्य अनुसार भार प्रदत्त करना कहलाती है। तीसरा, प्रश्नों या परीक्षण पदों के आधार पर भार प्रदत्त करना। इस स्तर पर प्रश्नों के प्रकारों के आधार पर उन पदों का चयन करना होता है जो परीक्षक अवधि अंक जो विषय वस्तु और उद्देश्यों के बीच में न हों। चौथा जो है, इस पद में नील पत्र ब्लूप्रिंट का निर्माण किया जाता है। इस स्तर पर विषय वस्तु प्रश्नों के प्रकार एवं उद्देश्यों को दिए गए अंक भार का समायोजन इस प्रकार से किया जाता है कि उक्त तीनों का योग उन्हें आवंटित अंकों से अधिक नहीं होना चाहिए। नीलपत्र प्रारूप को त्रिदिशा सूचक चित्र भी कहा जाता है क्योंकि इसमें उद्देश्यों, विषय वस्तु और प्रश्नों को 3 दिशाओं में दर्शाया जाता है। इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है कि उक्त तीनों का योग पृथक पृथक जो आवंटित अंक भार के समान ही पूर्णांक भी दोनों ओर समान रहे और प्रतिशत भी दोनों ओर से समान संख्या में आए। अब इसी सेकंड में हम दूसरे चरण में बात कर रहे हैं प्रश्नों के आधार पर अंक भार क्रमांक, ठीक है। और फिर इसके साथ में टेबल में प्रश्नों के प्रकार, प्रश्नों की संख्या, अंक और प्रतिशत। तो सबसे पहले जो प्रश्नों के आधार पर अंक भार क्रमांक है 1, उसमें प्रश्नों के प्रकार निबंधात्मक प्रश्न, प्रश्नों की संख्या 1 है, अंक 4 और प्रतिशत 16। फिर प्रश्नों के आधार पर भार संख्या क्रमांक 2, इसमें आगे प्रश्नों के प्रकार है लघु त्रात्मक प्रश्न, प्रश्नों की संख्या 4 है और अंक 8 और प्रतिशत 32 है। फिर प्रश्नों के आधार पर अंक भार क्रमांक 3, इसमें प्रश्नों का प्रकार है अति लघुत्रात्मक प्रश्न, प्रश्नों की संख्या 4, अंक 4, प्रतिशत 16। फिर प्रश्नों के आधार पर अंक भार क्रमांक 4, इसमें प्रश्नों के प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रश्न और प्रश्नों की संख्या 9, अंक 9 और प्रतिशत 36। तो जो अंक है वो 25 आ रहे हैं और प्रतिशत इसमें 100 आ रहा है। तो कहीं न कहीं समान इसमें मात्रा रहती है, कहीं आगे पीछे नहीं होता है। तो ये जो डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय के द्वारा इस सेशन को तैयार किया गया है और आप आगे से आगे वीडियो को देखते रहें जिससे हमारे सेशन कंप्लीट होते रहें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।